A very good evening to all of you joining in with us today. We're going to join our hearts and praise and worship Jesus. We're going to hear what He wants to say to us. And even as we do, I'm just going to read a portion of scripture for you before we get into doing that to encourage you on. David says in Psalm 16 and verse 11, "You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand." So this evening, we don't need to drink out of the cup of sorrow. I certainly hope that you're not, because there are pleasures at the right hand of God and there's fullness of joy in His presence, and that's what we're invited to partake of this evening. So come on, let's join our hearts and worship Jesus together, even as Samson leads us in a time of worship today. Well, thank you so much, Ian, for that. And good evening, church. Welcome to Eden Spring. I'm so glad to be here with my friend Mark here, who I love to sit in and worship with. And I want to thank you all for joining with us in this evening. And even as we get into worship and all, I want to tell you that you open your hearts to Jesus, and invite Jesus into your heart. So, as we get into worship, please look up to the heavens and believe that everything that we sing and do today is done in Jesus' name. Amen.
Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I will worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I will worship Your holy name. Bless the Lord of my soul, bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I will worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. No, my soul, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy Thank you, Samson, for leading us today. And now we're about to get back into part 2 of the message on faithfulness being the key to God's blessing in our life. If you missed last week's message, go back and re-watch it, because there were some really great keys that Pastor Aubrey shared with us. So that was the first part. Today we're going to hear the second part of that message and have a whole rounded view on what it takes for us in this area of faithfulness, so that we can wholesomely receive
all of God's blessings in our lives. Over to Pastor Aubrey. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को पास्टर ऑब्री और कैटी माँ की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। जय मसीह की। पिछले बार हम लोग जो है सीख रहे थे विश्वास योग्यता पिता परमेश्वर की आशीष की कुंजी है, और इंग्लिश में जो है फेथफुलनेस इज द की टू गॉड्स ब्लेसिंग। और उसमें हम 6 बातें देख रहे थे कि हम आशीषों में कैसे जिए, और ये 6 बातों में से मैंने 3 बातें सिखा चुका हूँ। तो पहली चीज़ है कि हमको जो है पिता परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। दूसरी चीज़, उसके वचन के प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना है। और तीसरी जो दूसरी बात है, हमको जो है अपने जो है लोकल चर्च जो है, स्थानीय कलीसिया जो कहलाती है, उसके प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना है। मैंने बहुत सारी बातें इसमें आपको सिखाया था। और तीसरी बात जो है वो है बीइंग फेथफुल टू योर फैमिली, अपने परिवार के प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना है। मेरे प्रियो, हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ दुनिया पूरे स्वार्थ से भरी हुई है। लोग सेल्फिश लाइफ जी रहे हैं, सेल्फिशनेस लोगों के जीवन में पाया जाता है। और मैं एक छोटी सी कहानी ऐसा बताना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति जो है वो घने जंगल से जा रहा था और अचानक उसको शेर खाने के लिए उसको दौड़ा, और वो व्यक्ति जो है एक झाड़ देखकर उस पर चढ़ गया। और ऊपर चढ़ा तो ऊपर देखता है कि बहुत बड़ा एक गुरेला बैठा हुआ है, एक बहुत बड़ा, जिसको मनमानुष कहते हैं हिंदी में। अब वो आदमी सोचने लगा कि भैया शेर से बचा, अब यहाँ ऊपर गुरेला मेरे को क्या करेगा मालूम नहीं। लेकिन गुरेला ने उसको कुछ नहीं किया। अब शेर सोचने लगा कि मैं क्या करूं, तो उसने जो है उस आदमी से कहा कि भैया तू एक काम कर, वो गुरेला को नीचे ढकेल दे, मैं उसको खा जाऊंगा और चले जाऊंगा। आदमी सोचा भैया मेरी जान बचेगी। उसने जो गुरेला ने उसको कुछ नहीं किया था, उसको नीचे ढकल दिया। जब गुरेला नीचे गिरा तो शेर ने कहा, देख वो आदमी कितना स्वार्थी है, वो अपनी जान बचाने के लिए तेरे को ढकल दिया। तू ऊपर जा अब और उसको नीचे ढकल, ताकि मैं उसको खाऊं, क्योंकि मेरे को उसी के मटन को खाना है और उस मटन में स्वाद होता है। तो गुरेला भी जो है झाड़ चढ़ गया। लेकिन अब मनुष्य सोचने लगा कि ये मेरे को नीचे फेंकेगा और शेर मेरे को खा जाएगा। लेकिन गुरेला ने ऐसा नहीं किया और कहा मैं तेरे जैसा नहीं हूँ। मनुष्य जो है इतना स्वार्थी हो गया है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन ऐसे समय में जो है हमको परमेश्वर का वचन जो है हमको सारी सच्चाई की बातें सिखाती है। और बाइबल कहती है सत्य हमें सारी बातों से आज़ाद करती है। सत्य परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो ये सारी बातों से हमको सत्य परमेश्वर का वचन आज़ाद कर देता है। तो हम आज जो है चौथी बात सीखने जा रहे हैं कि विश्वास योग्यता प्राप्त कर हम कैसे जो है परमेश्वर की जो है आशीष की कुंजी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथी बात, जैसा इंग्लिश में लिखता है, बी फेथफुल टू योर फाइनेंस, अपने पैसों के प्रति भी विश्वास योग्य रहे, क्योंकि ये पैसा भी परमेश्वर जो है हमको दिया है। जो कुछ है सब हमारे पास जो भी है सब हमेशा जो अच्छे विश्वासी हैं वो हमेशा जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर चीज जो हमको दिया है उसके अच्छे भंडारी बने। हालेलुया, हालेलुया। क्या बने? अच्छे भंडारी बने। तो यहाँ पर लिखता है
योजना बनाकर अपने पैसे को खर्च करे। लूक के 14:28 से 30 पद में, लूका रचित सुसमाचार जो है उसका 14 आयत और उसकी 28 और 30 पद यूं कहता है, तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की जो है वो हैसियत रखता है और मेरे पास पैसा है कि नहीं है। कहीं ऐसे ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। तो यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि हम हर अपने पैसों का भी जो भी करना है हम योजना बनाए, पवित्र आत्मा से हम जो है मदद मांगे कि परमेश्वर योजना हम बनाते हैं, सफल पवित्र आत्मा करता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हम ये योजना बना रहे हैं और इसमें आपकी मर्जी क्या है, इसको आप सफल करेंगे या ना करेंगे, हम प्रार्थना करके आपकी मदद चाहते हैं। तो जैसा हम ऐसे जो है इस प्रकार का जीवन जीते हैं, ये सब हमको जो है परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनाता है। दूसरी बात, हमेशा अपने खर्च पर ध्यान रखकर करें। नीति वचन 27 के 23 में ऐसा लिखता है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले और अपने सब पशु के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो है हमेशा अपने खर्च को भी आय से ज्यादा अपना खर्च ना करें। ऐसे में हम कमाते कितना है और दुगना खर्च करते हैं तो हम कर्ज में पड़ जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम अपने पैसों के प्रति भी विश्वास योग्य है। दूसरी बात, अपने कमाई का 10वां अंश समय से कलीसिया में डाला करे। जो बोता है वो काटता है। अपना 10वां अंश जो परमेश्वर को देता है वो जो है परमेश्वर की आशीषों में जीता है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता दिखाता है, उसका देना सिखाता है कि वो कितना प्यार करता है परमेश्वर से। जो प्यार करते हैं वही लोग परमेश्वर को अच्छा 10वां अंश देते हैं। हालेलुया, आमीन। जो कुछ तेरे पास है वह सब पिता परमेश्वर का है, फिर भी वह तुमसे केवल 10वां अंश देने को कह रहा है। आमीन। ताकि उसकी सेवा और सेवा करने वाले दास दासियों को मदद मिले। ये पैसा परमेश्वर के भंडार में जाता है, ये पैसा ताकि उसकी सेवा जो करते हैं दास दासियां पास्टर, उनके परिवारों के लिए, उनकी मेहनत के लिए ये पैसा जो है मदद के तौर पे डाला जाता है। उसने वायदा किया है कि वो आपके 10वां अंश को आशीष देगा और उसने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा भला है। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है मुझको परखो, 10वां अंश दो। मेरे पास पिछले इतवार को एक बहन आई थी, कह रही कि यही इतवार को कि हम 50-60 हजार रुपए कमाते हैं लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता, वो कमी होती है, हमको उधार लेना पड़ता है। मेरे प्रियो, वो बात हम समझ गए क्योंकि जो पैसा है उस पर बरकत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना 10वां अंश परमेश्वर को देना नहीं सीखा। यदि हम परमेश्वर को देते हैं तो शैतान हमारे पैसों की कभी चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो यहाँ पर लिखता है मत्ती के 3:10 में, मलाकी 3:10 में कहता है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। अपने सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार जो है आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर कह रहा है परख कर देखो मुझको, मैं अपरंपार जो है
आशीष की वर्षा करूंगा, तुमको मैं आशीष की कुंजी दूंगा। इतना बड़ा वायदा परमेश्वर कह रहा है, तो हम क्यों ना अपना दसवांश परमेश्वर को जो है ईमानदारी के साथ दे। हालेलुया। और मैं भी एक दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरे आंटी और अंकल ने जो है उन्होंने मुझको सिखाया था कि दसवांश देना, और मैंने जब से दसवांश देना शुरू किया, मुझे किसी भी चीज की कमी घटी परमेश्वर कभी नहीं होने दिया। ये एक रहस्य है, ये एक सीक्रेट है जो है मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप भी आशीषों में जीना चाहते हैं तो अपना दसवांश दिया करो, परमेश्वर की चोरी मत करो। और यदि तुम परमेश्वर की चोरी करते हो तो शैतान भी तुम्हारी चोरी करेगा, तुम्हारे पैसे को कई तरीके से वो लूटेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हमारे पैसों को वो छू भी नहीं सकता। हालेलुया। सिर्फ दसवांश ही नहीं, हर भले कामों के लिए दिया करो। यह नहीं कि पिता परमेश्वर आपके पैसों को मांगता है। देना एक आराधक का प्रतीक है। एक सच्चा आराधक, एक सच्चा जो परमेश्वर से की उपासना करता है, वर्शिपर है, वो हमेशा परमेश्वर को देना पसंद करता है। ये वो जो है एक आराधक का प्रतीक है, उसका एक चिन्ह है, और वो जानता है कि मैं परमेश्वर से कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। आराधना वो होती है कि हम अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं। नीति वचन 3:9 में लिखता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। आमीन, आमीन। ठीक है। और इसी में फिर जो है 5वीं बात मैं बताना जा रहा हूं, बीइंग फेथफुल टू वन कंट्री, अपने देश के प्रति भी विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। बहुत से लोग अपने देश के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, अपने देश के प्रति विश्वासघात करते हैं, अपने देश की बुराई करते हैं। रहते तो यहाँ पर है, देश का खाते हैं, लेकिन फिर भी देश की बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, हमको बुराई नहीं करना है। हमको जो चीजें ठीक नहीं लग रही है उसके लिए प्रार्थना करना है कि हमारा देश भी एक सुंदर देश बने। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है कि अपने देश के प्रति भी विश्वास योग्य रहो। और बहुत से मसीह के बच्चे यहाँ चूक कर जाते हैं, इसलिए वो आशीषों में नहीं जीते हैं, उनके पास आज आशीष की कुंजी नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है कि हम अपने सरकार के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने सरकार को स्थिर किया है। रोमियो के 13:1 में लिखता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकारी है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने ठहराया है तो हम उनके विरोध नहीं जा सकते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि उनके प्रति विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। देश के प्रति विश्वास योग्य रहे। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हम सरकार के प्रति कभी जो है बलवा ना करे, सरकार के नियम के प्रति बलवा ना करे, उसको उसके विरोध ना जाए ना करे। यानी परमेश्वर जो बलवा करना, यानी परमेश्वर के प्रति बलवा करना होता है, जो विरोध करता है, उल्लंघन करता है, इसका मतलब है कि वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो आज्ञा को मानता नहीं है। रोमियो के 13:2 में यदि हम पढ़े तो उसमें भी ऐसा दिया हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो हम दुष्ट विश्वासियों या अन्य जाति के लोग जैसे ना बने, जो हमेशा सरकार की बुराई या निंदा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर, यदि कोई अपने आप को विश्वासी कहता है और अपने देश के विरोध में बात करता है, उनके कानून को तोड़ता है, वो विश्वासी नहीं, वो दुष्ट व्यक्ति होता है। बाइबल कहती है हमेशा सरकार की बुराई या निंदा करते रहता है, क्योंकि पिता परमेश्वर सबके ऊपर नियंत्रण रखता है। सब चीज में उसका कंट्रोल है, परमेश्वर का कंट्रोल है। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर उस पर नियंत्रण रखता है।
बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। पहला तिमुथी 2 और 1:4 को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें सिखाता है कि हम अपने अधिकारियों के लिए, अपने नेताओं के लिए, हर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और छठवीं बात, अंतिम बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बीइंग फेथफुल टू द वर्क प्लेस, अपने कार्यस्थल में, जहां जो है अपने स्थान कार्यस्थल में जो है उसके प्रति भी हमको विश्वास योग्य रहना। जहां आप काम करते हैं, जहां आपका स्थान है, उसके प्रति भी आपको विश्वास योग्य रहना है। इफिसियों के 6:5 में लिखता है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की वैसा ही उनकी भी आज्ञा मानो। बाइबल हमें यह सिखाती है। लेकिन स्वामी परमेश्वर के वचन के विपरीत कार्य करता है, जैसा 2 नंबर के काम या और कोई गलत काम करता, तो हमें इन सब से दूर रहना है। हालेलुया। बाइबल ये भी सिखाती है और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें गलत हाथों से बचाए। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात जो है, अपने स्वामी की चीजों की चोरी ना करना या उसे धोखा ना देना। हमें स्वामी के लिए ईमानदारी से और मेहनत से काम करना चाहिए, मानो हम पिता परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। इफिसियों 6:8 को पढ़े, इफिसियों 6:8 को, इफिसियंस 6:8 को पढ़ने से हमको मालूम होता है कि हमको चोरी नहीं करना। मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे ऐसे स्थानों में, कंपनियों में काम करते हैं, तो वहाँ नौकरी भी कर रहे हैं, काम चोरी करते हैं, फुकट की तनख्वाह लेते हैं और वहाँ की चीज़ों को भी, ऑफिस की भी चीज़ों को चुरा के लेके आ जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है ऐसे लोग कैसे आशीष में जी सकेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने, और हम जब आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष की कुंजी देगा। स्वामी का कार्य और कार्यकर्ताओं के प्रति ऐसा होना चाहिए कि वो अपने उनकी इज्जत करे, उन्हें सम्मान दे। पिता परमेश्वर उन स्वामियों का न्याय करेगा जो अपने कार्यकर्ता से बुरा व्यवहार करता है। इफिसियों 6:9 में कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़ दो, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी को का पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर, उसके पास पक्षपात वाला काम नहीं है, फेवरेटिज्म नहीं है, वो न्यायी है। और हमको, यदि हम स्वामी हैं तो हमको भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार करना है। और यही चीज़ें जो है हमको जो है विश्वास की कुंजी दिलाती है। मैं अच्छा सुझाव आप सभी को, जितने लोग सुन रहे हैं, उनको एक अच्छा सुझाव देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हम अपने जीवनों को जांचें कि किस क्षेत्र में हम अविश्वास योग्य रहे हैं। जांच लें, जैसा दाऊद अपने हृदय को जांचता था, वैसा हम भी जांचें। हमेशा याद रखें, जो अपने पाप छिपाता है वो कभी उन्नति का जीवन नहीं जीता। जो पाप को छुपाते हैं, गलतियों को छुपाते हैं, ये कभी आशीष में नहीं जी सकेंगे। उन्नति का जीवन इनका नहीं हो सकता। हालेलुया। वो जीता है, पर जो अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करता है वह उन्नति का जीवन जीता है। अपने पापों को कबूल करें, क्षमा मांगे तो उन्नति में जिएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है, हम अपने पापों को मान ले और पश्चाताप करें। परमेश्वर क्षमा करके हर आशीष हमें लौटा देगा। यदि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने यदि विश्वास योग्य नहीं रहे अपने कार्यस्थल के प्रति, हम क्षमा मांगे परमेश्वर से और कहे कि प्रभु हमें क्षमा कर दे। हम कबूल करते हैं हमसे पाप हुआ है और प्रभु हमको उन्नति में जीना सिखा, और परमेश्वर हमको उन्नति में जीना सिखाएगा। हालेलुया। तो ये आज की 3 बातें मैंने आपको सिखाया है। हालेलुया। तो क्या है? बीइंग फेथफुल टू आवर फाइनेंस, अपने पैसों के प्रति हम विश्वास योग्य रहे।
अपने देश के प्रति बी फेथफुल टू योर कंट्री, अपने देश के प्रति विश्वास योग्य रहे, और बी फेथफुल और एट योर वर्किंग प्लेस, जहां पे भी आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसके प्रति भी हम विश्वास योग्य रहें। जितने लोग इस वचन को मानेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, वो आशीष की कुंजी पाकर आशीषों में जिएंगे। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा जितने सुनते हैं उनको आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें, उन्नति में रखें, शांति में रखें, आनंद में रखें, और परमेश्वर की शांति हमेशा उनके ऊपर बनी रहे। सबको जय मसीह की। This is our time now to remember what Jesus said to us. As often as you do this in remembrance of me. We get to join our hearts together with the extended body wherever you are, as one with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit, as we remember what Jesus did for us in the giving of His life. So I pray that you would take your bread, you would take your cup. If you're with your family, join together, or even if you're alone, remember you're still never alone, because He's with you at all times. So let's pray and let's partake together. Father, we thank you once again for giving us the opportunity to break bread and to drink of this cup. We want to thank you that Jesus did everything that we could ever hope or expect from our friend, and therefore He is our closest friend. He is our brother. He is our Savior, our healer, and our deliverer. We want to thank you, Jesus, for being a faithful friend, for being faithful till the end. And even as we partake today, we remember everything that it cost you and all that you did for us. And we remind ourselves that we now live to give all of ourselves back to you. So thank you, Lord. We bless your name, Jesus. Join together with your loved ones and partake of the Lord's Supper. I hope your heart has been filled today with tons of joy and your spirit has been encouraged even as you've listened to the Word of God. Now, the pathway of life is found by abiding in His Word. So I pray that through this week you would abide in the Word of the Lord. Like the psalmist says, your Word is a lamp to my feet and a light to my path. So if you need direction, you need to know which way to go, there's one source to go to show you, and that's God's Word. He will speak to you and He will lead you. So I pray that you stay in His Word, rest in His Word, and let His Word and Holy Spirit lead you every single day. We look forward to seeing you again here online next week at the same time. Tune in. We'd love to hear from you. So if you'd like to talk to us or you have a prayer request, there are numbers that will come up and you can get in touch with us. Till then, may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father,
and the fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each one of you. In Jesus' name. God bless you.